welcome to the online classes of SGOL. Students, in my previous video, I started the chapter simultaneously linear equation. Okay, and here we know that we have two linear equation, and after solving those equations, we find the value of x and y. For example, a1 x plus b1 y plus c1 is equals to c1, and a2 x plus b2 y is equals to c2. We have these two equations and we solve this equation and find the value of x and y. Okay, here I told you there are three types of method. First is substitution method, second is elimination method, and third is cross multiplication method. Okay, today I am going to discuss the second type of method, which is elimination method. Okay, let's see an example of, we have a equation 3x plus 4y is equals to 7 and 5x minus 7y is equals to 2. Okay, we have these two equations. Let this equation number 1 and this is equation number 2. Okay, here we use the elimination method for solving these two equations. Let's see the solution. In this type of question, student, firstly we say the conjugate of one variable. Okay, इनमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा एंड देन फिर उसको एलिमिनेट करना होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by 7 and equation number 2 by 4. Okay, let's solve it. Equation number 1 by 7 and 4, equation number 2 by 4. After multiplying by 7, we get 21x plus 28y is equals to 7 7 49. Okay, sure. And actually this is minus 7. This is minus 7. Now multiply equation number 2 by 4, we get 20x minus 28y is equals to 4 2s are 8. Okay, now here we add these two equations. After adding these two equations, on adding, when we add these two equations, we get 21x plus 20x, we get 41x, and plus 28y minus 28y cancel out it, and here minus 49 plus 8 we get 41 minus 41. Okay, then the value of x is minus 41 upon 41, then the value of x is 1. Okay, now we put this value of x in any of the equation number 1 or equation number 2. Okay, now putting the value of x is equals to minus 1 in equation number 1. Okay, now solve it. 3 into minus 1 plus 4y is equals to minus 7. Okay, minus 3 plus 4y is equals to minus 7. Then 4y is equals to minus 7 plus 3. Then 4y is equals to minus 4. Then y is equals to minus 4 upon 4. Then y is equals to minus 1. This is the answer. Here the value of x is 1
and sorry minus 1. This is minus 1. Value of x is minus 1 and value of y is minus 1. So what will we do in this question? Firstly, equating the coefficient of any of the variable and then eliminate this. Then find the value of second variable. Substitute this value in any of the equation number 1 or 2 and then solve it and find the value of second variable. Okay? Let's see the next example. Okay student, now see the next example. The question is 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equals to 2. This is first equation and the second equation is 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equals to 1. Okay. Now see the solution. Firstly, we let the value of let this equation 1 upon x minus 1 is equals to a. You can let here a, b, c, x, y, z any of the variable. Okay, sorry, except the x and y. X और y आपको let नहीं करना है. And the 1 upon y minus 2 is equals to b. Okay, put these two values in the equations. We get this is 5 into 1 upon x minus 1 and the value of 1 upon x minus 1 is a. Then the equation become 5a. Clear? Plus now this is 1 upon y minus 2. The value of 1 upon y minus 2 is b. Then the equation become b is equals to 2. Let this equation number 1. And here this is 6 into 1 upon, we can write it 6 into 1 upon 1 minus x minus 1 and the value of x minus 1 is a. Then this becomes 6a. Here then this becomes 6a minus here 3b is equals to 1. Let this equation number 2. Okay. Now solve these two equation number 1 and 2 by the elimination method. Okay. For this, what will we do? Firstly, we multiply. Here we save the coefficient of b. Okay. Here this is 3b. If we multiply equation number 1 by 3, we get 3b. Okay. Now multiply equation number 1 by 3. Okay. Now after multiplication we get 5 3s are 15a plus 3b is equals to 6 and second equation is 6a minus 3b is equals to 1. Okay, because the sign of b is opposite, then we add. Student, if here this is plus b और and this is also plus b, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय, because we know that when we subtract the equation the sign will be changed. Okay, but here the opposite sign, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. Okay, on addition, when we add 15 plus 6 is 21. 21a is equals to 7. Okay, then the value of a is 7 upon 21, which is 1 upon 3. Okay, now put the value of a in equation number 1 or 2. किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं. Now 5 into in equation number 1. In equation number 1, 5 into 1 upon 3 plus b is equals to 2. This is 5 by 3 plus b is equals to 2. Then b is equals to 2 minus 5 by 3. When we take LCM 3, this is 6 minus 5 and 1 by 3. Okay.
then the value of b is 1 by 3. Now students, we put the value of a and b here. Okay, then 1 upon x minus 1 is equals to a, then 1 upon x minus 1 is equals to 1 upon 3. After cross multiplication, when we get x minus 1 is equals to 3, then the value of x is 3 plus 1, x is equals to 4. Okay, similarly 1 upon y minus 2 is equals to b, and 1 upon y minus 2 is equals to 1 upon 3. After cross multiplication, we get y minus 2 is equals to 3, then y is equals to 3 plus 2, and y is equals to 5. This is the answer. Here is the value of x and y. तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया? जब भी क्वेश्चंस आपको इस टाइप के होंगे तो आपको इसमें लेट करना पड़ेगा. ए और बी लेट कर सकते हैं, यू एंड वी लेट कर सकते हैं, कुछ भी. और सॉल्व करके आपको इन दो वेरिएबल की जो आपने लेट की है उनकी वैल्यू निकालनी होगी. एंड देन इस वैल्यू को जहां आपने लेट किया वहां पुट करके आपको एट द एंड एक्स एंड वाई की ही वैल्यू निकालनी है. ओके, Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Now today's topic is rotation and revolution. This is the chapter of geography, chapter 3, related with 9 ICSE board. And now let's start. In my previous video, मैंने आपको rotation और revolution के बारे में बताया. There are the two movements of the earth. The first is rotation and the second is revolution. Rotation takes 24 hours and the revolution takes 365, 1.4 days. ओके, एंड नाउ इसके साथ हमने ये भी आपको बताया कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन. एंड नाउ द टुडेस टॉपिक इज सॉल्स्टिस. देयर आर द टू सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस एंड द विंटर सॉल्स्टिस. रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स को समझने के लिए या फिर सीजनल इफेक्ट्स को समझने के लिए कि सीजन किस तरीके से चेंजेस होते हैं, इन सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी है समझना कि सॉल्स्टिस क्या होता है. सॉल्स्टिस दो होते हैं, एक समर सॉल्स्टिस और दूसरा होता है विंटर. सॉल्स्टिस का वैसे मतलब होता है कि सन स्टैंड्स स्टिल. सन कहां पर स्टिल में स्टैंड कर रहा है तो वो समर सॉल्स्टिस होता है. और रीचिंग द ज़ेनिथ, और कब वो ज़ेनिथ पर, ज़ेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट पे वो कब पहुंच रहा है. ये दो चीजें हम लोग देखते हैं. वो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से समर सॉल्स्टिस होता है और किस तरीके से विंटर होता है. ये दोनों मैं आपको डायग्राम से क्लियर करूंगी. फर्स्टली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समर. जून 21 में, एक्चुअली जब जून 21 आता है उस समय पे जो नदर हेमिस्फीयर होता है वो इंक्रीज होता है टुवर्ड्स द सन. लाइक ये सन है हमारा, ठीक है. अब ये हमारी सन की रेजेस है. ओके, तो जो सन रेजेस हमारी आंख पर पड़ रही है, और मैंने आपको बताया कि जो हमारी अर्थ है वो टिल्ट है. टिल्ट का मतलब होता है थोड़ी सी झुकी हुई है. तो इस तरीके से ये जो हमने इसको, ये हमने इमेजिनरी लाइन बना दी. दिस लाइन इज इमेजिनरी लाइन एंड दिस इज द 90 डिग्री ऑफ नॉर्थ. ये नॉर्थ है क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, और ये हमारा 90 डिग्री साउथ है क्योंकि ये हमारा यहाँ पर साउथ पोल है. इसी के साथ साथ हमने आपको यहाँ पर सारी लैटिट्यूड्स भी क्लियर करी है, जिसमें 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. 0 डिग्री पे ये हमारी इक्वेटर है. 23.5 डिग्री साउथ में हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, क्योंकि ये यहाँ से ये हमारी इक्वेटर है, जिसमें ये हमारा जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर है, दिस पोर्शन, एंड दिस पोर्शन इज द सदर्न हेमिस्फीयर. तो सदर्न हेमिस्फीयर में हमारी 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और 66.5 डिग्री पे ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ एंटार्क्टिक सर्किल, ये एंटार्क्टिक सर्किल है. एंड 66.5 में दिस लाइन, दिस इज द 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा आर्कटिक सर्कल है. ये हमारी अर्थ के जो है वो सारे लैटिट्यूड्स हैं, जिसकी वजह से हम समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो हम जब देख रहे हैं कि जो सन की रेजेस है जब वो जो है इस तरह पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पूरे जो है ये जो हमारा पूरा पोर्शन आ रहा है, ये हमारा पूरा यहाँ पर डे है,
और ये पोर्शन जो है हमारा नाइट है। और ये जो सर्किल बन रहा है जो डे और नाइट को डिवाइड कर रहा है, दिस इज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, वो मैंने कई बार आपको बताया। तो जब ये सन की रेजेस हमारी अर्थ पे पड़ रही है तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये देखिए हमने आपको यहाँ पर ये बताया कि ये हमारी जो है वो 90 डिग्री पे हमारी मेजरमेंट लाइन है। तो लेकिन ये देखिए सन रेज यहाँ पर भी पड़ रही है, तो जो हमारा नदर हेमिस्फीयर है वो ज्यादा से ज्यादा पार्ट को जो सन रेजेस है वो कवर कर रही है। तो 21st में इंक्लाइन होता है टुवर्ड्स द सन, क्योंकि वो सन की तरफ इंक्लाइन हो रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिसीज है डायरेक्ट, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये देखिए हमारी 25 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इस पे जो सन की रेजेस है वो डायरेक्ट पड़ रही है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, जो हमारा ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा क्या हो रहा है, ये इससे थोड़ा टुवर्ड्स आगे जा रहा है, तो वहां पर विंटर है। तो यहाँ पर विंटर है इस समय ज्यादा, और यहाँ पर समर हो गया, क्योंकि सन रेजेस डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रही है। यहाँ पर डे इज लॉन्गर, डे बड़े होंगे और नाइट जो होती है वो शॉर्ट होती है। द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेस, जो लेंथ है एक डे की वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जैसे जैसे नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के लैटिट्यूड्स इंक्रीज होते जाते हैं, वैसे वैसे जो डे होता है वो डे का जो लेंथ होता है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ठंड जो होती है तो हमारे डे छोटे होते हैं, सब लोग बोलते हैं ना छोटे छोटे दिन होने लगे, बहुत जल्दी से अंधेरा होने लगता है, तो वो इसी वजह से होता है। और बड़े कब होते हैं, जब द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीज, जो डे का लेंथ है वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग, जब लैटिट्यूड जो नॉर्थ के हैं वो इक्वेटर की तरफ इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारी जो डे की लेंथ होती है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। अभी हमने देखा जो है वो आपका समर सॉल्स्टिस। अब अपना नेक्स्ट चीज है तो विंटर सॉल्स्टिस। अब देखिए विंटर सॉल्स्टिस जो कि हमारा दिसंबर 22, ये हमारा 21 जून जब हमारा समर सॉल्स्टिस हमें पूरा अच्छे से देखने को मिलता है, और दिसंबर 22 जब होगा, जिसको हम लोग बड़ा दिन भी बोलते हैं, जब हम लोग 25 को बड़ा दिन बोलते हैं, लेकिन उसके पहले जो 22 दिसंबर आता है उस समय हमको समर सॉल्स्टिस बहुत क्लियरली समझ में आने लगता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन हुआ, तो ये सन रेजेस यहाँ पर आ गई। अब ये देखिए सन रेजेस जब इधर से पड़ रही है तो दैट इज द पोर्शन, अब इसको हम ये मानेंगे ये वाली लाइन, दिस इज द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब हम ये देख रहे हैं इस तरीके से हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट हो रही है, क्योंकि वो किस तरफ की तरफ टिल्ट है, वेस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट चलती है, तो ये टिल्ट है। तो हम देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, यहाँ पर सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर ए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इस पे अब सन की डायरेक्ट रेजेस पड़ रही है, ना कि 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। यहाँ पर हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेजेस पड़ रही थी, बट यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हम देख रहे हैं कि सन की जो है डायरेक्ट रेज पड़ रही है। तो जो ये पोर्शन है हमारा अब सदर्न हेमिस्फीयर का, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा सन रेजेस को रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा विंटर, इसीलिए हम लोग दिसंबर 22 में विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीज एज वन गोस टुवर्ड्स साउथ पोल, और जैसे हमने यहाँ पर बताया कि नॉर्थ में इक्वेटर, ऐसे साउथ पोल में द लेंथ ऑफ द डे जो है वो इंक्रीज होता रहता है, और डे लॉन्गर होते हैं साउथ पोल। और जो हमारा साउथ हेमिस्फीयर है, जो साउथ पोल है, यहाँ पर डेज होते हैं तो नाइट के अपेक्षा लॉन्ग होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं होता। तो ये आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज सॉल्स्टिस, तो हमने समर सॉल्स्टिस एंड ये विंटर सॉल्स्टिस के बारे में पढ़ा। समर सॉल्स्टिस हमारा जो 21 जून है, और दिसंबर, और ये 21 जून हमारा समर सॉल्स्टिस में आता है, और दिसंबर 22 जो एक हमारा दिन होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे ठंड का टाइम होता है, तो ये होता है हमारा विंटर सॉल्स्टिस। तो ये इसको हम लोग जब हम ये आज आपको कोई मैंने ये पढ़ाया, जब आगे हम अभी आपको सीजनल इफेक्ट्स या सीजनल चेंजेस भी पढ़ाएंगे, तब हमें ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तब समझ में आएगी कि इनकी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ थर्ड एक और क्वेश्चन है, इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या होते हैं, इक्विनॉक्स इज द, इस इक्विनॉक्स के टाइम पे क्या होता है, जो डेज, इसमें मैंने आपको बताया कि डेज लॉन्ग होते हैं, नाइट शॉर्ट होती है, इसमें मैंने बताया कि नाइट लॉन्ग होती है और डे शॉर्ट होते हैं। बट इक्विनॉक्स जो चीज होती है, इक्विनॉक्स ये क्या होते हैं, दैट इज द डे एंड नाइट आर इक्वल। कौन सा ऐसा डे होता है जिसमें हमारी डे और नाइट दोनों इक्वल होती है, दोनों की लेंथ एक होती है, कोई भी किसी से बड़ा नहीं होता है, तो वो हमारे इक्विनॉक्स में आता है। तो द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस एंड द इक्विनॉक्स। तो समर और विंटर हो गया। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इक्विनॉक्स के बारे में बताऊंगी, जब डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 ICSE बोर्ड, विषय हिंदी। बच्चों, आज हम पुनः पत्र लेखन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको पत्र किसे कहते हैं, पत्रों के प्रकार एवं प्रार्थना पत्र तथा संपादक के नाम पत्र, ये 2 पत्र मैंने आपको लिखाए थे। आज औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र का एक उदाहरण मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ। तो इस शिकायती पत्र को भी आप अपनी CW की कॉपी पर भलीभांति लिखें। तो बच्चों, औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए, आज आप यह समझेंगे। विषय मैंने यहाँ पर लिख दिया है। विषय इस प्रकार है, अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर चारों ओर व्याप्त गंदगी एवं दुष्परिणामों से अवगत कराइए एवं उसके दुष्परिणामों से अवगत कराइए। विषय क्या लिखा हुआ है बच्चों मैंने कि अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर चारों ओर व्याप्त गंदगी एवं उसके दुष्परिणामों से अवगत कराएं। तो बच्चों, पत्र लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कॉपी पर क्या होना चाहिए, हाशिया होना चाहिए और हाशिए के बाईं तरफ हम कुछ भी नहीं लिखते। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। मैंने बोर्ड को 2 भागों में बांट रखा है। तो ये समझ लीजिए पृष्ठ संख्या 1 है और ये समझ लीजिए कि पृष्ठ संख्या 2 है। तो किस तरह आप जो है शिकायती पत्र की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसी सीध में क्या लिखेंगे बच्चों, सेवा में। सेवा में के बाद बच्चों आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद किसको लिख रहे हैं पत्र, स्वास्थ्य अधिकारी। तो क्या लिखेंगे, इसी की सीध में ठीक नीचे लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी। अब वो अधिकारी कहाँ के हैं, नगर, और नगर में स्वच्छता का जो कार्य होता है वो नगर निगम द्वारा किया जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, नगर निगम, नगर निगम। और इसके बाद भी बच्चों आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे और इसके बाद लिखेंगे शहर का नाम। तो शहर लिखेंगे कानपुर। कैसे शुरुआत करेंगे बच्चों शिकायती पत्र की, आप अपनी बाईं तरफ लिखेंगे सेवा में। सेवा में के बाद लगाएंगे आप अल्पविराम, अल्पविराम कॉमा, इसके बाद लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी, फिर क्या लगाएंगे बच्चों, कॉमा, इसके बाद लिखेंगे नगर निगम और नगर निगम के बाद भी क्या लगाएंगे, कॉमा, और फिर लिखेंगे कानपुर और कानपुर के बाद लगाएंगे पूर्णिया। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि विषय लिखा जाता है। तो आप क्या डालेंगे, विषय। अब किस विषय में आप स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत कराना चाहते हैं, तो लिखेंगे चारों ओर व्याप्त गंदगी, चारों ओर व्याप्त गंदगी एवं उसके दुष्परिणामों के संदर्भ में एवं उसके परिणामों के संदर्भ में ये लिखा आपने बच्चों विषय। क्या लिखेंगे, लिखा आपने विषय और विषय के ठीक सीधे आप बाईं तरफ लिखेंगे महोदय, महोदय। इसके बाद बच्चों क्या लगाएंगे, कॉमा, और फिर लिखेंगे महोदय मैं
W ब्लॉक, मैं W ब्लॉक केशव नगर का निवासी हूँ। केशव नगर का निवासी हूँ। मैं W ब्लॉक केशव नगर का निवासी हूँ। केशव नगर के हर क्षेत्र में, केशव नगर के हर मोहल्ले में गंदगी का फैलाव है। जगह जगह कूड़े के ढेर, ढेर लगे हैं। उस पर वर्षा ऋतु होने के कारण पानी भरने पर संडास या सड़न उत्पन्न हो रही है। क्या लिखा बच्चों आपने? केशव नगर के हर मोहल्ले में गंदगी का फैलाव है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। उस पर वर्षा ऋतु होने के कारण पानी भरने पर सड़न उत्पन्न हो रही है। संपूर्ण क्षेत्र की नालियां जाम हैं, जिससे जल भराव की स्थिति बनी है। कूड़े एवं नालियों से आती बदबू के कारण लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। क्या बच्चों लिखेंगे आप? विषय शुरू करते हुए प्रारंभ करते हुए लिखेंगे महोदय, मैं
केशव नगर का निवासी हूँ। केशव नगर के हर मोहल्ले में गंदगी का फैलाव है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। उस पर वर्षा ऋतु होने के कारण पानी भरने पर सड़क उत्पन्न हो रही है। संपूर्ण क्षेत्र की नालियां जाम हैं, जिससे जल भराव की स्थिति बनी है। कूड़े एवं नालियों से आती बदबू के कारण लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। गंदगी के फैलाव के कारण गंदगी के फैलाव के कारण अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। मलेरिया अब पूरी तरह से क्षेत्र में फैल रहा है। तो बच्चों, यहाँ पत्र में क्या कहा गया था कि नगर निगम अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर चारों ओर व्याप्त गंदगी एवं उसके दो दुष्परिणामों से अवगत कराए। तो गंदगी का क्या किया गया, वर्णन किया गया, और उस गंदगी के कारण क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं इसकी यहाँ पर क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो क्या मलेरिया पूरी तरह से क्षेत्र में फैल रहा है। महोदय पर आप चेंज कर देंगे बच्चों। महोदय समय रहते यदि गंदगी का निस्तारण नहीं किया गया तो यह संक्रामक बीमारियां इसके बाद बच्चों मैं इधर लिख के दे रही हूँ। समय रहते यदि गंदगी का निस्तारण नहीं किया गया तो यह संक्रामक बीमारियां और भयावह रूप धारण कर लेगी। फिर बच्चों पैराग्राफ चेंज करेंगे। आता है
आपसे निवेदन है कि क्षेत्रवासियों की समस्या को समझते हुए यथाशीघ्र कूड़े के निस्तारण का प्रबंध कराइए। बच्चों, ये तो आपने पत्र का मुख्य विषय लिखा, निस्तारण का प्रबंध कराइए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ही आप क्या लिखेंगे? धन्यवाद। और धन्यवाद के बाद आप क्या लगा सकते हैं? संबोधन का चिन्ह भी लगा सकते हैं और कॉमा भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद बच्चों हेडिंग पड़ेगी भवदीय। और भवदीय में चूंकि एक शिकायती पत्र जो होती है किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखे जाते तो हैं, परंतु समस्त क्षेत्रवासियों की प्रार्थना उसमें सम्मिलित होती है। अतः भवदीय में क्या लिखेंगे? समस्त क्षेत्रवासी। इसके बाद क्या लिखेंगे? केशव नगर कानपुर। और इसके बाद बच्चों अंत में आप क्या डालेंगे? दिनांक में आप लिख सकते हैं 7/7/2020। तो बच्चों यहाँ जो है आपका ये शिकायती पत्र समाप्त होता है। इसको आपको अपनी CW की कॉपी पे इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने आपको समझाया है। तो आज के लिए बच्चों